Good afternoon, everyone. Today you had a paper that was offline paper, and I will be discussing that paper with you all. तो बच्चे I will be starting up straight away from section C, and I have a sheet of one of the candidate. The writing style of this paper has been really very well. I am really impressed, and I thought of sharing the same with you, and in the form of answer sheet which has been given by the candidate. So moving to section C, बच्चे, if we talk about section C, the very first question is a stat based question. As I am always telling you, it would be of poem and it can be there from any of the poem. The first thing that has to be kept in mind while preparing this question, that you have to be thorough with all the poems. Okay, the question here says, let me zoom in the question for you all so that it would be quite visible for you and easy to see the things here where I have put it my cursor. This is the question. Read the extract given below carefully and answer the following question. The extract says, and forever by day and night I give back life to my own origin and make pure and beautify it. For song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering record or unrecord, duly with love return. So बच्चे, the very first question says, what does I refer to in these line? यहाँ पे I का क्या मतलब है? तो I का मतलब है यहाँ पे voice of rain. तो बिल्कुल सिंपल है बच्चे, I का मतलब है voice of rain. Okay. Coming to the second question. The second question says, how does song have its fulfillment? तो बच्चे, song का मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ. बेसिकली सॉन्ग कौन बनाता है? सॉन्ग इज बीइंग कंपोज्ड बाय ए कंपोजर. जब तक सॉन्ग को कंपोज नहीं किया जाता और उसको उसके ऑडियंस नहीं सुनता, यानी लिसनर्स उनको नहीं सुनते, तब तक सॉन्ग की फुलफिलमेंट नहीं हो पाती. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question says, identify the poetic devices used by a poet in the above extract. तो जो poetic device है वो यहाँ पे है personification, right? The personification is the poetic device which has been used over here. ठीक है बच्चे? Okay. Coming to the next question. The next question says, give me a moment. The next question says, what returned with love? The rain returns his voice with love. He comes back to the earth, जहाँ से वो पैदा हुई है. The earth is the birthplace of the rain, and it ends on its birthplace only. और अर्थ में ही ये end up होती है. Okay बच्चे? Okay. So moving to the next question. The next question is short answer type question. Let me zoom in that question for you. Yes, this one. The very first question, it would be comprising of 3 questions, but you have a privilege of attempting any 2 questions out of 3. Okay, and each question consists of 3 marks and it would be 6 marks. So the first question is that 3 different stanza depict 3 different phases. What are they? जो ये 3 stanzas हैं, ये कौन से फेज को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फोटोग्राफ? तो बच्चे, द आंसर फॉर द क्वेश्चन इज, इसमें 3 सीरीज की वो बात हुई है कि जब पोएटेस की मदर यंग थी एंड शी वॉज एंजॉइंग विद हर कजन्स डॉली एंड बेटी, एंड शी वॉज क्लिक्ड बाय हर अंकल. सेकेंड फेज वो है कि जब मदर बड़ी है, राइट, शी इज मैरिड, शी इज हैविंग ए डॉटर एंड शी इज हैविंग ए लुक over the snapshot which was clicked by uncle, and she is laughing that how she was looking while wearing a beach dress, right? The third part, the third phase जो है वो ये है कि now mother is no more, her daughter is in silence, she feels like now there is no one whom she can talk, and now there is no one whom she can consider as a friend or discuss things with that person. तो ये 3 phases हैं. Okay.
बच्चे moving to the next question says, give me a moment. And the next question says, yes, I think the answer sheet is quite visible to you all. The next question says, what do you notice about the beginning and ending of the poem? बच्चे laburnum top की beginning में और ending में आप क्या feel करते हैं? तो basically जब goldfinch laburnum top में नहीं होता तो laburnum top is full of silence and laburnum top is inactive. उसके बाद गोल्डफिंच आता है, उसमें एक्टिवनेस आ जाती है, और गोल्डफिंच जब चला जाता है तो अगेन laburnum टॉप इज इन साइलेंस, राइट. अगेन laburnum टॉप जो है वो साइलेंट हो जाता है. ओके ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, डज द पोएट टॉक ऑफ एन एक्सक्लूसिव पर्सनल एक्सपीरियंस और इट इज फेयरली यूनिवर्सल? बच्चे अगर हम बात करें फादर टू सन की, so whenever we talk about the relationship of a father and a son, moreover in this poem it has been depicted that it's a personal experience, but on the other side it's a global experience too. It's a fairly universal experience, as this issue is being faced by every father who is living in this beautiful planet Earth, and due to this generation gap, one has to experience the same which has been experienced by the father in father to son. Okay. बच्चे coming to short answer type question. In short answer type question, they are the short answer type question which is taken from which is being taken from your hornbills. You will be getting 5 questions and you have a privilege of doing any 3 questions, right, out of 5. So moving to these short answer type question, the very first question is, how the experience of the author at town hall was different from the earlier visits to the places. See, जिन लोगों ने पहले होर विजिट किया होता है वो होर को एक बहुत ही अच्छा टाउन बताते हैं, but when Nick visit होर, Nick doesn't find it as the statement which was given by earlier travelers. क्यों? इसको ध्यान से सुनना बच्चे. एक तो निक को लगता है, एंड जब वो होर पे पहुंचता है तो वो देखता है कि होर इज ए ग्रिम का मतलब है कि होर इज ए अगली प्लेस, इट्स ए अगली टाउन, राइट. देयर इज नो वेजिटेशन. होर इज फुल ऑफ डस्ट एंड स्टोन्स. मोर ओवर, होर इज लोकेटेड एट द शोर ऑफ लेक मानसरोवर, बट अनफॉर्चुनेट पार्ट इज दैट स्टिल इट हैज नो वेजिटेशन, राइट. ओके, so moving to question number 2. The question number 2 is the lack of determinism in quantum theory. बच्चे lack of determinism in quantum theory, it means it's a concept which is given in physics, and in this chapter particularly जब गायटुंडे वापस आता है पैरेलल वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में, he wake up in the hospital and he runs towards his friend राजेंद्र देशपांडे. राजेंद्र देशपांडे को वो पूरी स्टोरी बताता है और राजेंद्र देशपांडे के आगे एविडेंस रखता है, और राजेंद्र देशपांडे अब उसको कहता है कि मे बी इट्स अ पॉसिबिलिटी दैट बिकॉज ऑफ दिस क्वांटम थ्योरी यू वुड हैव मूव टू ए डिफरेंट वर्ल्ड. वो कहता है कि जब हम एक बुलेट को फायर करते हैं, इस क्वेश्चन में आपने बुलेट का एग्जाम्पल ज़रूर देना है. जब हम एक बुलेट को फायर करते हैं, बुलेट वेयर द बुलेट इज मूविंग, बुलेट कहाँ पे जाएगा, कितनी स्पीड में जाएगा, वी आर अवेयर ऑफ दैट, राइट. बट जब एक इलेक्ट्रॉन को आप फोर्स देते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इन विच डायरेक्शन इट विल गो, नो वन कैन प्रेडिक्ट इट, इट कांट बी प्रेडिक्ट बाय एनी वन. तो बच्चे इसमें एक थ्योरी है जो कि क्वांटम थ्योरी है, जो दैट इज बीइंग सेड बाय राजेंद्र पांडे टू गायटुंडे, कि हो सकता है, माइट बी पॉसिबल दैट बिकॉज ऑफ दिस थ्योरी यू हैव move to a different world. Okay, so बच्चे, if I talk about this question paper, we will be moving to next question. The next question says, the problem of overpopulation directly affects our everyday life. Overpopulation. Okay, बच्चे मैं आपसे सिंपली एक बात करूंगा. Overpopulation is a problem itself, right? Overpopulation होगा तो क्या होगा? ओवर पॉपुलेशन जब होगा तो अर्थ का जो नेचुरल रिसोर्स है उसको ओवर एक्सप्लॉटेशन हम करेंगे.
जब अर्थ के नेचुरल रिसोर्स का हम ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे देन वी आर नॉट कीपिंग एनीथिंग फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, हम अपनी आने वाली जनरेशन के लिए कुछ नहीं रख रहे हैं। दूसरी बात, टू मीट द डिमांड, राइट, हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए वी आर नॉट यूजिंग नेचुरल मैन्योर एनीमोर, हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर से। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर इज अफेक्टिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स वी विल बी फेसिंग in the future, and definitely somewhere down the line we are facing this problem in our day to day life because nothing is organic presently. आप देखिए कि present condition की बात करें, you will find nothing organic, right? Okay. Moving to next question. The next question says, how did the narrator accept his approaching death and why was he still peaceful? This question has been taken from We are not afraid to die if we all are together, right? Okay. तो बच्चे इस क्वेश्चन का ये मतलब है, एंड आई विल बी टेकिंग यू बैक टू द चैप्टर। इस चैप्टर में ये हुआ कि 2 जनवरी को वेव वॉकर के साथ एक हाई वेव टकराई। जैसे ही वेव टकराती है तो जो नरेटर है वो ऑफ बोर्ड हो जाता है और पानी में गिर जाता है। ही इज़ इंजर्ड, राइट। उसका गिरने से पहले उसका जो सर है वो व्हील के साथ लगता है और नाउ ही नोज ही कांट डू एनीथिंग। उसे पता है कि ही नाउ हैव नो ऑप्शन, ही कांट डू एनीथिंग। और इसलिए अब नरेटर जो है ही हैज़ एक्सेप्टेड हिज डेथ एंड ही इज़ फीलिंग कि ही विल बी डाइंग एट पीस। इसलिए वो बड़ा ही पीसफुली अपनी लाइफ को, अपनी डेथ को एक्सेप्ट करता है, बिकॉज ही इज़ नॉट इन अ कंडीशन एंड ही इज़ नॉट इवन थिंकिंग के ही वुड इवन सर्वाइव फ्रॉम दिस डिफिकल्ट सिचुएशन। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द स्पैरो एक्सप्रेस देयर ग्रीफ सॉरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंड मदर डाइड? बच्चे, जब ऑथर की ग्रैंड मदर एक्सपायर हो जाती है तो किस तरह से स्पैरोज जो हैं वो अपना दुख जताती हैं। बेसिकली जब ग्रैंड मदर एक्सपायर होती हैं और उनकी बॉडी को वेरेंडा में रखा होता है तो ये स्पैरोज आती हैं, बट दिस टाइम दे आर नॉट मेकिंग एनी साउंड, दे आर नॉट क्रीपिंग, राइट। इवन के जो मदर है खुशवंत सिंह की, शी ऑफर्स ब्रेड क्रम्स टू द स्पैरो बट दे डोंट ईट एनीथिंग, एंड आफ्टर द बॉडी हैज़ बीन टेकन फॉर द फाइनल रिचुअल दैट इज क्रिमेशन, these sparrows without making any sound they flew away, ये चली जाती हैं silently वहाँ से। तो it is believed कि this is the way by which these sparrows has expressed their grief or sorrow over the grandmother's death. Okay, बच्चे, we are moving to another question. So the next question says, I have done something, oh God, I have done something real at last. Why does Andrew say this? What does it mean? Discuss. This question has been taken from the birth. Okay, if I take you back to the birth में basically जब बेबी पैदा होता है तो बेबी स्टिल बॉर्न पैदा होता है, राइट। अब एंड्रयू क्या करता है, एंड्रयू बेबी को जैसे पकड़ता है वो देखता है कि सू जो बेबी की मदर है उसका जो हार्ट रेट है, उसका जो पल्स है वो ड्रॉप कर जाता है। नाउ एंड्रयू इज इन ए बिग डिलेमा। द डिलेमा इज के वेदर टू सेव बेबी और वेदर टू सेव मदर। ही टेक्स ए डिसीजन क्विकली आफ्टर गेटिंग ओवर द डिलेमा। वो बच्चे को मिडवाइफ को देता है, सुजैन को एक एम्प्यूल लगाता है, एम्प्यूल इंजेक्ट करता है और सुजैन की लाइफ को रिवाइव करता है। सुजैन अब ठीक हो जाती है। नाउ ही कम्स बैक टू बेबी। अब वो जैसे ही मिडवाइफ को कहता है कि वेयर इज़ द बेबी, मिडवाइफ कहती है कि अंडर द बेड, तो वो बिल्कुल शॉक हो जाता है कि मिडवाइफ ने बच्चे को बेड के अंदर डाला है, उसके ऊपर न्यूज़पेपर रैप करके। वो बच्चे को बाहर निकालता है और देखता है कि उन बच्चे की जो स्किन है वो टेंडर है। इतनी देर में ही रिमेंबर्स के सेम केस वॉज देयर व्हेन ही वॉज स्टडिंग इन द कॉलेज, राइट। तो वहाँ पे उसको प्रोसीजर याद आता है, वो प्रोसीजर परफॉर्म करता है। मिडवाइफ को कहता है कि हॉट वाटर बाउल एंड बीकर एंड कोल्ड वाटर बीकर लेके आऊँ। उसमें वो उसको पहले वो उसकी चेस्ट को रब करता है, उसकी बैक को रब करता है,
फिर वो ठंडे पानी में डालता है उसको, फिर गर्म पानी में डालता है, फिर ठंडे पानी में डालता है, फिर गर्म पानी में डालता है, फिर बच्चे को बाहर निकालते हैं, राइट। और बच्चे को बाहर निकालने के बाद फिर वो एंड में लास्ट ट्राई करता है उसकी चेस्ट को अब रब करना शुरू करता है टॉल के साथ, राइट। बच्चा गैस्प करना शुरू हो जाता है। गैस्प करना होता है कि बच्चा जो है वो सांस लेना शुरू हो जाता है, और बच्चा जैसे ही सांस लेता है एंड ही बिकम्स रियली वेरी हैप्पी। और मिडवाइफ बिलीव ही नहीं कर पाती, बिकॉज मिडवाइफ हैज लॉस्ट ऑल द होप्स कि दिस इज अ स्टिल बॉर्न चाइल्ड एंड डेफिनेटली दिस चाइल्ड विल नॉट गोना रिवाइव। बट वो भी सरप्राइज होती है, वो भी एफर्ट्स देखती है एंड्रयू की। तो एंड्रयू ने वहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है, एक बच्चे को बचा के उसकी मदर को सेव करके बहुत ही डेडिकेटली अपने काम को परफॉर्म किया है। इसलिए ही सेज आई हैव डन समथिंग, ओ गॉड आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट। ओके बच्चे, इसका ये मतलब है। कमिंग टू द और पार्ट सेज the lesson they address is about an autobiographical note at one level, while at another it portrays how fertile the war is। मतलब fertile का मतलब होता है dangerous, ठीक है। What are your views regarding war? Is it truthful based on the view on the chapter they address? तो बच्चे इस क्वेश्चन को समझ के आपने वॉर के क्यों डेंजरस है इस चैप्टर के हिसाब से, और वैसे भी जनरल इफ यू टॉक अबाउट वॉर, व्हाई द वॉर इज बीइंग कंसीडर्ड एज अ डेंजरस एंड अ डिस्ट्रक्टिव थिंग, वी हैव टू एक्सप्लेन दैट थिंग। देखिए बच्चे, फ्यू पॉइंट्स आपने अपने यू नीड टू कीप इन योर माइंड व्हाइल फ्रेमिंग दिस आंसर। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज दैट के वॉर को सुन के क्या लगता है आपको? वॉर इज डिस्ट्रक्शन, राइट। वॉर से डिस्ट्रक्शन जो है वो होता है, फर्स्ट पॉइंट। वॉर से जब डिस्ट्रक्शन होता है तो लोग जो हैं वो रिफ्यूजी बनते हैं। रिफ्यूजी का मतलब है दे लूज देयर हाउस, दे लूज देयर लव वंस, दे लूज देयर young ones, they have to make a movement from one place to another, and they even don't know कि where they will be moving, they don't know कि उन्हें कुछ खाने के लिए मिलेगा, whether they would be able to fill their tummy or not. They don't even they are not even aware about the fact that would they able to survive or not. They are not in a state of mind के whether to come back, whether to go, what to do. It's all destruction. चैप्टर में अगर हम मार्गा मिंगो की बात करें तो वॉर में जब इनको मूव करना पड़ा तो इनका फाइनेंशियल स्टेटस खत्म हो गया। Previously she used to live in her own house, but after war she was living in a rented apartment. Before war she was having her mom who was living with her, but after that war she lost her mother. Before of the war, if we talk about war se pehle she was having all the valuables, but after the war she was having no valuable things which used to belong to her once. तो बच्चे इस पे ही आप बात करेंगे सारे, and you will be framing the answer. Okay, if I move to next question, the next question says discuss the play Mother's Day as a social play and what the various social issue the play raises. बच्चे इस play में एक ही social issue को raise किया है, and the social issue is the upliftment of women. Basically we all have to work together for the women empowerment. बच्चे in this chapter इट हैज़ बीन श्योर कि एक जो लेडी है वो एक मदर है, वो एक वाइफ है। मदर एंड वाइफ होने के बाद शी इज़ वर्किंग टायरलेसली फॉर द फैमिली। वो बहुत काम करती है, सुबह से लेकर शाम तक फैमिली के लिए काम करती है, बट एट द एंड ऑफ द डे शी इज़ नॉट गेटिंग इवन सिंगल रिस्पेक्ट, इवन सिंगल एप्रिसिएशन फ्रॉम हर फैमिली। जो ये फीमेल है बच्चे, मिसेस एनी पियर्सन, as a female, as a person, as an individual, she has her own life, but she is not living her own life. She has her own dreams, she is not fulfilling her own dreams. वैसे ही हमारी सोसाइटी में कितने ऐसे लोग होंगे जिनके हस्बैंड उन्हें बीट करते हैं, या उनको उनके चिल्ड्रन भी अब्यूज़ करते हैं, या गर्ल्स को इक्वल नहीं समझा जाता मेल के, गर्ल्स को एजुकेशन नहीं दी जाती, या गर्ल्स को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करवाया जाता। these all the social issues which has been depicted in this
प्ले इन अ वेरी ह्यूमरस वे। तो आप इन सोशल रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। बच्चे मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि डिस्क्राइब ए डिटेल्ड नोट ऑन द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस फिट्जराल्ड। ओके, फिट्जराल्ड की बात करें तो फिट्जराल्ड कौन थी? फिट्जराल्ड एनी पियर्सन की नेबर थी। शी वॉज अ बोल्ड लेडी, शी वॉज अ लेडी who promotes women empowerment. She speaks against bad thing which happens against women, right? She was a magician. She was very firm about the decision. What she decide, she performs that what she have decided, right? So Mrs. Fitzgerald is a person who is very bold. He is extrovert, right? जो उसके दिल में है उसके मुंह पे है, इसको एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। शी इज़ ए इंडिपेंडेंट फीमेल, शी इज़ ए बिट एग्रेसिव टू, ठीक है, ये थोड़े से एग्रेसिव भी हैं। एंड शी हैज़ ऑल द डेयरिंग टू सेट द फैमिलीज, टू सेट द पीपल। तो इसलिए एट द एंड शी हैज़ सेटेड ऑल द फैमिली मेम्बर्स। तो बच्चे फिट्जराल्ड हेल्प करती है एनी पियर्सन की टू गेट हर आउट ऑफ दिस डिफ़िकल्ट कंडीशन, एंड शी सेट्स द फैमिली, शी सेट्स जॉर्ज पियर्सन, डोरिस, शी सेट्स सारल, एंड शी मेक देम बिलीव कि वुमेन हैज़ टू बी रिस्पेक्टेड एंड वुमेन हैज़ टू बी अप्रिशिएटेड, एंड शी somehow success because at the end of the play definitely the family comes to the Pearson and they apologize what they have ever done to her and they commit that they will be living as an happy family। तो बच्चे यहाँ पे हमारा सेक्शन सी जो है वो कंप्लीट हो गया है। नाउ मूविंग टू सेक्शन बी। सेक्शन बी की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन इज पोस्टर। पोस्टर में यू हैव टू ड्राफ्ट ए पोस्टर ऑन ए ब्लड डोनेशन कैंप। ये अवेयरनेस के ऊपर पोस्टर है बच्चे। द पर्सन हुज आंसरिंग शीट आई एम शेयरिंग, उन्होंने एडवर्टीजमेंट की है, तो इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम पोस्टर को डिस्कस करते हैं। बच्चे व्हेन यू विल बी मेकिंग ए पोस्टर जिसमें आप ब्लड डोनेशन कैंप को प्रमोट करेंगे, यू हैव टू कीप वन थिंग इन योर माइंड, दैट वन थिंग इज दैट पोस्टर हैज़ टू बी देयर फ्रेम्ड इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, इन अ वेरी कॉमन लैंग्वेज। उसमें आर्ट वर्क होने चाहिए, राइट? जो आप ड्राइंग करेंगे, यू आर नॉट अलाउड टू यूज पेंसिल, एवरीथिंग यू विल बी डूइंग विद द हेल्प ऑफ ए पेन। यू हैव टू मेक ए बॉक्स, आपको बॉक्स भी पेन से ही बनाना है, ठीक है बच्चे? एंड यू आर नॉट अलाउड टू राइट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को अवॉइड करेंगे एंड यू विल ट्राई हार्ड टू मेक एंड ड्राफ्ट पोस्टर इन पॉइंटर्स ओनली, राइट? ओके, so coming to the OR question, the OR question says you want to let out a flat draft a suitable advertisement in about 50 words to be published in the to-let column of newspaper। तो to-let column में आप किस तरह से करेंगे बच्चे? जब आप किसी चीज़ को रेंट पे अवेलेबल करवाते हैं, चाहे वो आपका घर है, चाहे तो बच्चे जब भी हम प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाते हैं रेंट पे, तो हम उसकी हेडिंग to-let यूज़ करते हैं। whenever you will be drafting a to-let advertisement, you have to be very particular about the features of the product which you are making available on rental basis। उसके प्रोडक्ट को डिस्कस करें। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमने अपना घर रेंट पे देना है, तो हमारे घर में क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए? 24/7 वाटर फैसिलिटीज़ देयर, पावर बैकअप इज़ देयर। पावर बैकअप के साथ साथ यू कैन इवन राइट के जो रेंट एक्सपेक्टेड है वो कितना है, कितने फ्लोर्स का घर है, इट्स ए 2 BHK घर, इट्स ए डुप्लेक्स या सिंगल स्टोरी है या डबल स्टोरी है। यू कैन ऐड ऑल द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन वाइल ड्राफ्टिंग ए एडवर्टीजमेंट फॉर द प्रोडक्ट विच यू आर सेलिंग, विच यू आर मेकिंग अवेलेबल ऑन रेंटल बेसिस, ठीक है बच्चे? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे वन थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड व्हेनेवर यू विल बी ड्राफ्टिंग ए to-let एडवर्टीजमेंट, यहाँ पे something is missing. You need to give your contact number. Contact number is mandatory along with email, right? Contact number और email जो है ये देना ही देना है। Okay. Moving to next question. The next question says you are आशीष अंकिता from district रियासी। आप आशीष या अंकिता हैं रियासी के। आपको एक लेटर लिखना है डायरेक्टर ऑफ दूरदर्शन को।
सजेस्टिंग द इम्प्रूवमेंट सम इम्प्रूवमेंट इन टीवी प्रोग्राम। ओके, अगर हम दूरदर्शन के डायरेक्टर को लिख रहे हैं तो बच्चे कौन सा लेटर हुआ, ये ऑफिशियल लेटर हुआ। ऑफिशियल लेटर में सबसे पहले यू हैव टू गिव सेंडर एड्रेस, ठीक है, डेट आएगा आपका, आपका रिसीवर एड्रेस आएगा, पिन कोड्स आ गए, सब्जेक्ट आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, बिकॉज यू राइटिंग एज ए सिटीजन एज ए रेजिडेंट टू डायरेक्टर ऑफ दूरदर्शन, डायरेक्टर इज ए पोस्ट, तो आप इसमें रिस्पेक्टेड सर यूज़ करेंगे। आप इसमें लिख सकते हैं कि नाउ द टाइम इज देयर इन विच children are more smarter than us, what they learn what they observe, right? सो आपको दूरदर्शन में इंट्रोड्यूस करने चाहिए एजुकेशनल प्रोग्राम्स जिसमें बच्चे जो हैं वो यूनिवर्स के बारे में पढ़ सकें, ब्लैक होल के बारे में पढ़ सकें, दे कैन प्रिपेयर देमसेल्फ सिंस देयर चाइल्डहुड फॉर द अपर क्लासेस, एंड these things, this information has been broadcasted in a very nicer way, very simple way, in a very creative cartoon way, so that it creates interest among the children. Moreover, there are few programs which can't be seen in a family, right? We can't watch it with our parents, we can't watch it with our sisters, brothers, so these type of adult rated program, they should be banned from getting broadcasted in Doordarshan. तो इस तरह से आप अपना लेटर लिखेंगे बच्चे, एंड वंस यू विल बी क्लोजिंग योर लेटर यू विल बी राइटिंग थैंक यू, यू हैव टू लीव ए लाइन, yours faithfully, your name and resident. Perfectly done by this student, right? And next question, it's a, what is it? It's a email, right? In this question you need to write an email to your friend informing him about the change in the date ऑफ मैरिज सेरेमनी ऑफ योर ब्रदर। आपके भाई की जो शादी की डेट है वो चेंज होगी और उसका आप इन्फॉर्मेशन देंगे। तो बच्चे इसका सेट फॉर्मेट है जो कि मैंने आपको बताया है, FDTCS, इसको आप पूरा ब्लॉक में बनाएंगे, इसका फॉर्मेट अच्छा करेंगे। आप डियर से शुरू करेंगे बिकॉज आपके सिलेबस में पर्सनल ईमेल ही हैं, दे आर नो ऑफिशियल ईमेल्स, राइट? आप एंड में विद रिगार्ड्स करके इसको अपना सिग्नेचर देंगे। और एक और बात आई रियली वांट टू क्लियर इट अप विद यू, जब हम डेट की बात करते हैं डोंट मेंशन ऑल द रीजंस, सिंपली राइट ड्यू टू द अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस the previous date of marriage which was this has been getting postponed to this, and I request you to be there so that we can enjoy together, and I request you to be there with your family, and your presence would be really important to me as you are one of my best friend। आप इस तरह से इस ईमेल पे लिख सकते हैं। ओके बच्चे, लेटर के साथ एक और लेटर आया है ऑप्शन में, वो लेटर कहता है यू आर समीर सिमरन फ्रॉम डोडा, आप समीर सिमरन है डोडा के। आपको एक लेटर लिखना है एडिटर को, एडिटर कहाँ का, ये स्टेट टाइम्स का, ठीक है। उनको बताना है कि स्ट्रीट बैगिंग जो है उसको बैन करना चाहिए, हमारी जो इंटायर डिस्ट्रिक्ट में हो रही है वो एक ईवल है। तो बच्चे जब भी आप एडिटर को लिखते हो सेम फॉर्मेट यूज़ होता है, बट आपकी जो स्टार्टिंग लाइन्स हैं वो चेंज होती हैं। स्टार्टिंग लाइन पर आप हमेशा लिख सकते हैं थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू ब्रिंग इन योर कंसिडरेशन दैट द street beggars are increasing day by day, and moreover the act of theft is also increasing day by day simultaneously. So it might be possible the person who is coming in the morning for begging up things have a look over the house, and he is doing surveillance about the family or the people who are living in the particular family in that particular house, and in the evening he is informing to his group, and they are producing the act of theft, and this is a major thing which has to be taken care by the government, and they should control this thing in order to control the theft cases also in the city. आप ये भी लिख सकते हैं moreover जो ये बच्चे हैं, जो ये beggars हैं, sorry, they are fully grown, they are smart, they are capable, they are not handicaps, and it is believed that if a person is fit physically then he can work, and he must work for the betterment of himself and for the betterment of the society. So everything has to be written बच्चे, इस तरह से आप इसको फ्रेम कर सकते हैं। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सेक्शन बी का एक और क्वेश्चन है दैट आई रियली वांट टू टॉक ऑन इट। इट इज क्वेश्चन नंबर 6। द क्वेश्चन नंबर 6 इज you are Manish Arpita of GSS Samba,
आप मनीषा या अर्पिता हैं GSS सांबा के, यू ज्वाइंड एन एजुकेशन टूर, आप एक एजुकेशन टूर पे गए टू ए हिस्टोरिकल प्लेस। राइट ए स्पीच ऑन द टॉपिक, आपको स्पीच लिखनी है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन टूर इन स्टूडेंट्स लाइफ। तो बच्चे स्पीच है तो स्पीच का फॉर्मेट ईजी होना चाहिए। स्पीच में आपको हेडिंग देना है एंड यू हैव टू स्टार्ट अप विद दी ओपनिंग लाइंस। ओपनिंग लाइंस कैसे होंगी, अब ये स्पीच है, स्पीच स्कूल में दी जाती है, तो गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, वर्दी टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम Manish or Arpita from GSS Samba is going to speak on importance of education tour in students life। तो एजुकेशन टूर क्यों इम्पोर्टेंट है? फॉर एग्जांपल अगर हम हरी निवास जाते हैं, हरी निवास इज़ वन ऑफ एन ओल्ड मोनूमेंट, इट बिलोंग्स टू द रॉयल फैमिली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मोर ओवर वहाँ पे इट कैन बी कंसिडर एज ए पार्ट ऑफ एजुकेशन टूर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे म्यूज़ियम है, वहाँ पे हम फोटोग्राफ्स देख सकते हैं, हम अपनी हिस्ट्री जान सकते हैं, हम डोगरा रूलर्स के बारे में पढ़ सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि फ़र्स्ट डोगरा रूलर कैसे थे, कौन थे, उन्होंने महाराजा हरी सिंह जी से कैसे जम्मू को लिया एंड व्हाट बेस्ट ही डिड फॉर जम्मू, उसके बाद उनको किसने ओवरटेक किया। एंड वी कैन ऑल्सो कम टू नो अबाउट महाराजा हरी सिंह जी, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस, फीमेल अपलिफ्टमेंट में उनकी क्या रोल रहा, राइट। एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी रिटन इन दिस स्पीच बच्चे। बट वेन एवर यू विल बी ड्राफ्टिंग स्पीच, यू नीड टू बी फोकस्ड ऑन दी ओपनिंग लाइन्स एंड यू नीड टू बी वेरी मच फोकस्ड ऑन दी क्लोजिंग लाइन एज वेल। ओके, इसके और में एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि यू आर मानव सेठी फ्रॉम पुंछ, वन डे योर मदर आस्क यू टू गो टू ए वेजिटेबल मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स, राइट योर एक्सपीरियंस इन द फॉर्म ऑफ नरेटिव। आपको पर्सनल नरेटिव, नरेटिव क्या होता है? इट्स ए सेल्फ स्टोरी। आपको स्टोरी सुनानी है कि आपको एक दिन आपकी मम्मा एक मार्केट में ले गए और आपका क्या एक्सपीरियंस था। तो वी कैन एक्सपीरियंस कि दैट वाज माय फर्स्ट डे व्हेन आई एंटर्ड मार्केट, इट वाज ह्यूज रश, द पीपल वर rushing over each other, the people don't have sense, they were screaming, they were pushing each other. I got scared, but eventually my mother had told me to get 1 kg of tomatoes. I went to few vendors. I was not liking the shape of the tomatoes. Moreover, the color was not red as my mother had told me that the tomato has to be pure red in color. And ultimately I got the tomatoes from one of the shop, but when I paid him, he didn't gave me the but I didn't I forgot to take money, the refund from that particular vendor, left money from the vendor. So when I went back to him, I told him कि I have left my money over here, but he was not agreeing, and he told me कि you might have dropped it somewhere and you might have eaten something and you are bluffing and you are cheating. So I was I'm a very responsible person, I don't cheat anyone. I went to mom, I told everything to my mother. My mother is very supportive and she told me not to repeat this thing again, and whenever you take money from someone, you need to count it up and you need to keep it in a safe pocket or a secret pocket that we usually have in our jeans. तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ओके, तो बच्चे नाउ आई विल बी डिस्कसिंग एडिटिंग पार्ट विद यू। एडिटिंग, दिस चाइल्ड हैज़ डन ब्लंडर इन एडिटिंग। तो एडिटिंग बच्चे आपका इस तरह से था। रामा लिव्ड इन ए विलेज ऑफ थेनाली, ही लव्ड, ओके, ही लव्ड टू प्ले प्रैंक एंड वॉज ऑलवेज, जोक्स का जोकिंग आ जाएगा, ठीक है, रिफ्यूज टू स्टडी एंड टुक नथिंग सीरियसली। हर मदर, हर नहीं बच्चा, ये मेल है तो यहाँ पे हिज आएगा। हिज मदर डिडंट नो व्हाट टू डू विद हिम, शी फील्स ही विल नेवर बी एबल टू डू एनीथिंग इन हिज लाइफ। वन डे शी टुक हिम टू द होली मैन, शी टोल्ड द होली मैन दैट शी हैड enough of her son, she requested him to dint the sons into Rama. So ये इसके आंसर्स हैं बच्चे। तो now section B is also being discussed and I hope the things are being clear to you all. Moving to section A, if I talk about section A, the very first question start from node making. तो बच्चे node making में I have told you have to give title और आप नंबरिंग फॉर्मेट इसी तरह से रखेंगे। एंड वेरी वेल डन बाय दिस चाइल्ड। जो आप एब्रीवेशन यूज़ करेंगे उसको आप अंडरलाइन करते चलेंगे एज दिस चाइल्ड हैज़ डन इट, ठीक है।
बच्चे अगर मैं एब्रीवेशन की बात करूं तो मिनिमम 5 एब्रीवेशन यूज़ करेंगे। एब्रीवेशन वही आप इंक्लूड करेंगे जिसे आप एब्रीवेशन बॉक्स में रखेंगे। अगर आप नोट मेकिंग में एब्रीवेशन यूज़ करते हैं और उसे एब्रीवेशन बॉक्स में शो नहीं करते, देन डेफिनेटली ये क्वेश्चन वुड बी कंसीडर रॉन्ग। ओके, आपने मिनिमम 4 सब पॉइंट्स लिखने हैं और मिनिमम 4 सब पॉइंट्स के मिनिमम 4 सब हेडिंग होने चाहिए। एब्रीवेशन बॉक्स के बाद आप समरी लिखेंगे, समरी का टाइटल देंगे जो कि डिफरेंट होना चाहिए विद द टाइटल विच हैज़ बीन गिवन बाय यू इन नोट मेकिंग। आपकी समरी जो है वो 80 वर्ड्स की होनी चाहिए, एक सिंगल पेज में होना चाहिए, एक सिंगल पैराग्राफ में होनी चाहिए, जिस तरह से इस स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया है, राइट। ओके, सो मूविंग टू सेक्शन ए, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में बच्चे, I have already told you whenever you will be attempting second question, you have to make sure that you must write questions। जैसे कि बच्चे ने मेंशन किया है, क्वेश्चन लिखेंगे और फिर उसका आंसर इस तरह से देंगे with proper statement to the given option। So I hope the things are very well clear to you. If there would be anything, please feel free to connect me anytime. You can drop your doubts in the WhatsApp group also. Definitely I will be getting back to you the ones I will be seeing your messages in the group. And if you are not posting anything in the group, then definitely you can come to me personally with your doubts, and definitely I will be helping you to get through with them. I want to wish you luck for rest of the day. God bless you and have a nice day.